हम पढ़ेंगे आइज़ाया 54 चैप्टर, 55 चैप्टर, 56 चैप्टर। आइज़ाया 54, 55, 56 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा, आपके बिना इन वचनों को समझना असंभव है। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, हम इन वचनों को समझ पाए, ऐसा अभिषेक और अनुग्रह कीजिए। ये वचन हमारे जहन में, हमारे चित्त में उतर कर आ जाए और हम इसके मनन करते रहे और इसके द्वारा हमारा जीवन तू चाहता है वैसे रचना में ढल कर आ जाए। नासरी यीशु के नाम में हम इन वचनों को समझने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइज़ाया 54 चैप्टर पढ़ेंगे। इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अभी किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। आइज़ाया 54। द चर्च comforted with gracious promises. First verse says, Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travel with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shall not remember the reproach of thy widowhood any more. For thy Maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall he be called. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth when thou wast refused, saith thy God. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. Hallelujah. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. For this is as the waters of Noah unto me, for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee nor rebuke thee. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colors, and lay thy foundations with sapphires, and I will make thine windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shalt thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Hallelujah. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals of
in the fire, and that bringeth forth an instrument of his work, and I have created the waster to destroy. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Hallelujah. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Chapter 55. The prophet with the promises of Christ calls to faith and to repentance. First verse. Ho, everyone that thirsteth, cometh ye come ye buy and eat. Yea, come buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee, because of the Lord thy God, and for the Holy One of Israel, for he hath glorified thee. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. हालेलुया. देखिए, ये 7th वचन को याद रखिए. मैं हिंदी में इसके बारे में आपको बताऊंगी. For my thoughts are not your ways, your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. ये वचनों को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी क्या है. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word. Thank you, Jesus. Shabiantu kambara khasia kumbara khasta. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Chapter 56. God's promises without respect of persons. The church distressed by blind watchmen. First verse. Thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger that hath joined himself to the Lord speak, saying,
The Lord hath utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree. For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths and choose the things that please me, and take hold of my covenant, even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Hallelujah. हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं उस जगह को तैयार करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ठहराई गई है, और मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, कमरे हैं। अगर ना होते तो मैंने तुमको बता दिया होता, है ना। तो ये वचन याद रखना, 5 वचन को। देखो, आप मसीह में होने के बाद जब यीशु ने पूरी आज्ञा पालन की, उसको दिया हुआ असाइनमेंट उसने पूरा कर दिया, तो उसको नाम मिला सारे नामों से ऊंचा। ओके, उसका पोजीशन बना, सारा अधिकार और सामर्थ उसके अधीन कर दिया, वो पोजीशन उनको मिला। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हर स्वर्गदूतों से अलग करके प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान मिला है। ठीक है, तो अब परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए भी मैंने एक नाम रखा है, एक जगह तैयार रखी है। जो इस्राएली लोग हैं, जो इस्राएली प्रजा पुराने नियम से परमेश्वर के संतान कहे जाते थे, उनसे मैंने अलग करके रखा है अन्य जातियों के लिए। जो अन्य जाति पाप से मुंह फिराएंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उनके लिए मैंने ये एक अवस्था रखी है। हालेलुया, ये हमारी डेस्टिनी है। हालेलुया, तो ये डेस्टिनी हमारे लिए परमेश्वर ने रखी हुई है, इसको हम चल रहे हैं। हम जितना आज्ञा पालन परमेश्वर में चलते हैं, वैसा हमारे एक पोजीशन वहाँ पर तैयार होता है। तो आज्ञा पालन को महत्व है, याद रखना। आपका पोजीशन आत्मा के जगह में तैयार हुआ जा रहा है। जितना आपका आत्मा के जगह में तैयार होगा पोजीशन, उतना अधिकार और सामर्थ परमेश्वर आपको सौंपेगा आत्मिक जगत के अंदर। हालेलुया, तो आपको ध्यान रखना है, ये कनेक्टेड काम है जो पृथ्वी पर हम कर रहे हैं, स्वर्ग में वो बटोर कर उसकी एक जगह बनाई जा रही है। ओके, 6 वचन से आगे, ऑल्सो द सन्स ऑफ द स्ट्रेंजर दैट जॉइन देमसेल्व्स टू द लॉर्ड टू सर्व हिम एंड टू लव द नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी हिज सर्वेंट्स, एवरीवन दैट कीपeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant, even them will I bring to my holy mountain. ओके, तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़े तो मैं आया हूँ लेकर जाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, लेकिन साथ साथ और भी भेड़े हैं। हालेलुया, तो ये वचन आप याद रखो, 7 वचन। I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. हालेलुया। ओके, तो हम जो अन्य जातियों में से आए हुए लोगों के विषय में ये है, their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people. Hallelujah. The Lord God which gathered the outcasts of the Israel saith, yet will I gather others to him beside those that are gathered unto him. All ye beasts of the field come to devour, yea, all ye beasts in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, they are greedy dogs, which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Come, ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant.
तो उस इंसान की तरह हमें नहीं बनना है जो कहता है मेरा मालिक तो बहुत दूर चला गया है। यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया है कि वो तो बहुत दूर चला गया है, तो उसको आने में काफ़ी लंबी समय लगने वाली है। तो चलो खाओ पियो मज़े करो और इतना कुछ बटोर के रखो कि आने वाले पीढ़ी में भी वो इस्तेमाल हो जाए। ओके, और चिंता का विषय ना रहे शरीर के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेशन हमें इस पृथ्वी पर नहीं बनना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर का काम करते हुए सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए लूट देना है। ओके, सब कुछ लुटा देना है परमेश्वर के राज्य के ऊपर। ऐसा जीवन हमने जीना है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, कल की चिंता छोड़कर हमने परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखते हुए आगे जाना है। हम पढ़ेंगे यशायाह 54, 55, 56 अध्याय हिंदी पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों के से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे पर पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। 4 वचन से आगे, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। हालेलुया। अन्य जातियों को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। ओके, कुछ समय के बाद परमेश्वर उनको बड़ी दया के साथ अपने पास ले लेगा, जैसा इस्राएलियों को वो कह रहा है। ओके, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का, किसका छुड़ाने वाला है? वो आपका है, मेरा है, तो उसका ये वचन है हमारे लिए। हालेलुया। वो इस्राएल को कह रहा है ये, लेकिन आज वो हमारे जीवन को लागू हो जाता है। ओके, हमको बड़े क्लेश में छोड़ दिया था उसने। ओके, बड़े क्लेश में मोआबी बोलकर हमको छोड़ दिया था। मोआबियों ने व्यभिचार के बारे में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ज़्यादा भ्रष्ट कर लिए थे अपने रास्ते, इतनी ज़्यादा मात्रा में दुष्टता, क्रूरता, अधिक दूसरे शक्तियों के पीछे दौड़ना, सब कुछ करके परमेश्वर के लिए वो एक दुश्मन बन के जी रहे थे। उनके अंदर के हम जाति थे। ओके, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कुछ समय के लिए, मुझे इतना गुस्सा आ चुका था कि मैंने अपना मुंह छिपा लिया। मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह छिपा लिया। ओके, और आवेग में आकर उसने कहा, मैं बहुत क्रोध के आवेग में आ गया था, गुस्सा आ गया था मुझे। ओके, सब कुछ मैंने बंद करके रख दिया। ओके, लेकिन अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। वो है अनुग्रह का आत्मा जो अब उंडेला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद माफ़ी आ गई परमेश्वर की ओर से और हमें छुड़ा लिया गया, और अब अनंत जीवन के अंदर हमको ले लिया। परमेश्वर ने दया के लिए ले लिया, दया के लिए। उसने कोई हुनर नहीं देखी हमारी। ओके, उसने कोई अपराध और गुनाह का गुस्सा नहीं रखा। सारा उसका क्रोध आवेग थूक दिया उसने, गुस्सा थूक दिया उसने। ओके, वो हमारा परमेश्वर है।
ओके, हम भी वही लोग हैं जो परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर वैसा हम लोग हैं। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समान समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ यहाँ कि हम अनुग्रह के द्वारा अगर उद्धार में आए हैं तो व्यवस्था के नीचे जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था लिखी जाती है उसके आधार से हमको अपने आप का न्याय नहीं करना है। क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर का क्रोध करने वालों के ऊपर व्यवस्था का नियम लगा हुआ है। परमेश्वर का क्रोध जिनके ऊपर है, हमारे ऊपर से परमेश्वर ने माफी को लेकर आया है। उसने शपथ खाया है, मैंने इनको माफ कर दिया। उसने शपथ लिया था नूह के समान कि अब मैं जल प्रलय दोबारा नहीं लाऊंगा। तो वो यीशु मसीह को कवनेंट में ले लिया है कि तेरी प्रजा के ऊपर, तेरे राज्य के लोगों के ऊपर मैं अपना क्रोध हटा देता हूँ, और मैं अपनी धमकियों को दूर कर देता हूँ। हालेलुया। इसके लिए हम प्रेम से, करुणा से, बड़े कोमलता के साथ हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से वो क्रोध परमेश्वर का निकल चुका है और परमेश्वर का प्रेम लोगों के अंदर उंडेला जा रहा है। हालेलुया। तो हम किसी के बारे में क्रोध रख के नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से लोगों के जीवनों के अंदर प्रवेश करता है। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। किसके ऊपर? दया करने वालों के ऊपर। तो दया किसके ऊपर हो गई है? अन्य जातियों के ऊपर। तो हम अभी अनुग्रह दया ही के कारण हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं। तो हम पाप की व्यवस्था को कैसे क्या मानेंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप कर रहे हैं, ये पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो पाप करने से परमेश्वर मारेगा, वो पाप करने से परमेश्वर धमकी क्यों देते हैं? मसीहों को, मसीही लोगों के लिए दया है और मसीही लोगों के लिए अब बड़ी शांति की वाचा बन गई है प्रभु यीशु के द्वारा। बड़ी शांति के साथ हम परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े हुए हैं और हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर बड़ी दया को लाया है। अब हमारे ऊपर उसका क्रोध नहीं है, वो हमको धमकी नहीं देता है, वो हमको बोलता है बस हो गया, अब सिर्फ मेरा प्यार ही चख लो आप लोग। तो हर जगह से, हर समानता, हर एक अलगाव में परमेश्वर उसके वचन को पालन करने का हमको अनुग्रह के आत्मा देकर रखा है, ताकि हमको जड़ ना जाए, मतलब हमको वो कठिन ना लगे, वो हमको परेशानी ना लगे। इसके लिए हमें आसान बनाने वाला जुआ दिया है, पवित्र आत्मा हम में रखा है, वही आज्ञा पालन हमको सिखाता है, वही आज्ञा पालन का जोर हमारे अंदर बनता है। हालेलुया। अगर हम मसीह में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, परमेश्वर का भावता हुआ इंसान हम अपने आप को देखेंगे तो हम पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को पापी, दोषी, दूषित, करप्टेड, वायलेंट, एग्रेसिव, विकेट ऐसे अगर नामों से पहचान रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा का इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे हैं नहीं और हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। तो हमारे अंदर परमेश्वर का सबसे सुंदर कैरेक्टर मौजूद है, सबसे ज़बरदस्त, सुंदर, रौनक, रोशनी से भरा हुआ कैरेक्टर हमारे अंदर मौजूद है। उसकी सराहना करना है हमने, उसी को हम प्रकट करते हैं, उसी के आधार से हमारा चरित्र बनता है। हम पापी नहीं रहे। हालेलुया। और ना ही हम मसीहियों को एक दूसरे में पापी पापी कहे, वो पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है। शट योर माउथ। चुप रह जाओ, मुंह बंद कर दो अपना, क्योंकि जहाँ दया है वहाँ पाप खत्म हो चुका है। हालेलुया। हाँ, गलती बोल सकते हैं,
आप बोल सकते हैं उसको दूषित कर रहे हैं, अपने मन को बोल सकते हैं। पाप कर रहे हो, शट योर माउथ। ओके, पाप और दूषित होना फर्क पड़ता है। पाप के लिए साल में एक बार बलिदान किया जाता था, लेकिन दूषित अगर हुए तो उसके लिए कुछ सेरेमोनियल थे जो काम किए जाते थे, जो शुद्ध करने का अवस्था दोबारा लौटा के लाता था। आमीन। तो मन फिराओ ये हमारे शुद्ध रहने का रास्ता है। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं हमसे हुई तो हमने मन फिरा लेना है और दोबारा परमेश्वर को चाहिए वैसे जीवन जीना शुरू करना है। ये हमारा मसीह जीवन है। आमीन। धमकियाँ और क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर अब नहीं है। भावी यरूशलेम नगरी 11 वचन से आगे। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्ची कारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश मैं मणिकोण से, तेरे फाटक लालटियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। मैं अपने आत्मिक बेटियों के लिए ये हमेशा वचन यूज़ करती हूँ। ओके, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके बड़ी शांति हो मिलेगी। हालेलुया। ये गारंटेड है। मेरे आत्मिक बेटी जो है दोनों, उनके बारे में ये गारंटेड वचन है, गारंटेड। ओके, कि उनके पास सिखलाया हुआ परमेश्वर का आत्मा है और उनके सिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा है और उनके अंदर बड़ी शांति प्राप्त होती रहेगी। हालेलुया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। इसके लिए मैं दुष्टता के जगत के लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि अगर दुष्टता एक हथियार है तो परमेश्वर के पास दुष्टता को नाश करने का हथियार है। हालेलुया। 17 वचन देखिए क्या है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। खत्म करो बात को, है ना। ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है हमारे लिए कि हम जीते हुए लोग हैं। ठीक है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो हम क्यों जीतेंगे? यहोवा का हमारे लिए रखा हुआ ये भाग है। हालेलुया। इसके लिए शत्रु चाहे जितना जोर बताए अपना, उसकी मूर्खता है, वो कभी नहीं जीता है और ना कभी जीत पाएगा। हालेलुया। वो बंदर की तरह उछल कूद कर सकता है। ओके, वो बंदरों की तरह सब कुछ नखरे दिखा सकता है, नकलें करके दिखा सकता है। ओके, मजाक उड़ा के बता सकता है, अपनी पावर के शोबाजी बता सकते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा हिम्मत बता सकते हैं, लेकिन लास्ट क्या है? वो हारे हुए हैं। वो सिर्फ बोलने की बातें हैं, उनके पास कोई दम तो बाकी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका दम पहले ही तोड़ दिया है। हालेलुया। तो वो सिर्फ एक, क्या कहते हैं ना उसको, ड्रामाबाजी करने वाला जग है वो दुष्टता। ओके, सिर्फ उनकी ड्रामाबाजी देखते रहो। परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए। 55 अध्याय का पहले वचन से। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही ले आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। ये फिजिकली भी मेरे लाइफ में मैं इस्तेमाल करती हूँ और
स्पिरिचुअली भी, क्योंकि परमेश्वर हमको आनंदित करता है, हर्षित करता है। तो मैंने हमेशा अच्छी अच्छी भोजन वस्तु का आनंद लिया है, दुख नहीं किया। ओ मैं तो ये बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, ओ मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ही इसके बारे में ले लिया है मन के ऊपर, नहीं। ओके, परमेश्वर भली भली चीज़ों से, भले भले वस्तुओं से जब हमको देता है तो हम बहुत आनंद के साथ उसको तृप्त होकर लूट लेते हैं ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा ओके, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उस उत्तम वस्तु खाने पाओगे। तो हमको ये उत्तम वस्तु जब मिलती है तो इसका मतलब क्या है? हमने परमेश्वर की ओर मन लगाकर अपने जीवन को जिया है, तभी जाके हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी बातें उंडेल दी गई। हालेलुया। वो मत्ती में लिखा हुआ है ना 6 अध्याय में, पहले तो परमेश्वर के राज्य की खोज कर, उसके धार्मिकता की खोज कर, तो बाकी सारी बातें तेरे जीवन में उंडेली जाएगी। तो जब अच्छी वस्तुएं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा समय हमारे जीवन में उंडेला जाता है तो इसका मतलब क्या बनता है? धार्मिकता हमको प्राप्त हुई। ओके, परमेश्वर ने हमको धार्मिकता दे दिया और अब हमको जो ज़रूरत है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारे जीवन में उंडेल दिया गया है। हालेलुया। तो कौन रोते हुए वो उंडेली बात को हम लेंगे, है ना? हम तो आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए उसे अपने जीवन में समेट लेते हैं। आमीन। समेट लेते हैं यानी दूसरों के जीवनों की बातों को अपने जीवन में लेकर बैठे नहीं रहते हैं। हम परमेश्वर जो हमको समय समय के अनुसार कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसे तृप्त करता है, तब हम लोग उसे बहुत आनंद के साथ अपने अंदर ले लेते हैं। आमीन। हम उसका दुख नहीं करते हैं, उसके बारे में दोष फील नहीं करते हैं। ओके, उसके बारे में हमको ज़रा भी मन टूटता नहीं है, एकदम आराम से हम उसका आनंद ले लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारी रिवॉर्ड हमको दी है। 3 वचन से आगे, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। ये हम अन्य जातियों को यीशु मसीह में नया समय मिला है। और देखिए सीक्रेट जीवित रहने का, मेरे पास आओ और सुनो। हालेलुया। यानी वचन के सुनने से आपको जीवन प्रदान होता है। ध्यान रखिए, जितना वचन आप ध्यान देकर सुनोगे उतना जीवन आप में भर रहा है। हालेलुया। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। यीशु के बारे में है ये। ओके, सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, यानी वो हम लोग हैं, अन्य जातियाँ, और ऐसी जातियाँ जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह कहेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। ओके, तो यीशु बोलता है ना, मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे पिता के पास। ओके, तो ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस्राएली है। ओके, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता यहोवा है। ओके, और हम अन्य जातियों में थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके बारे में दौड़कर उसके पास जाते हैं और कहते हैं हम तेरे हैं, हम तेरे पिता को जानते हैं, हम तेरे पिता के हो चुके हैं, हम अभी तेरे संगति में तेरे भाई और बहन हो चुके हैं, हम तेरे संगति में तेरे दोस्त हो चुके हैं, और हम उसको सराहते हैं। ओके, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर ने गौरव किया है, उसको परमेश्वर ने महान किया है।
जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। ये क्या कह रहा है? क्योंकि यीशु आगमन हो जाने के बाद का समय के लिए अलग समय रहने वाला है। अभी यीशु का आगमन नहीं हुआ है, यीशु के नाम से सब कुछ चलाया जा रहा है। तो इस समय है वो, ये समय है जहाँ पर पापों की माफ़ी का समय है। ओके, ये समय है, परमेश्वर कहता है अभी यीशु आपके निकट रखा गया है, आप ले लो उसको। हालेलुया। दुनिया में आज पवित्र आत्मा आपके निकट रखा है, आप उसको ले लो। दुनिया के अंदर यीशु नाम की चर्चा हो रही है, जल्दी से अपने अंदर ले लो उसको, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, एक दिन आने वाला है कि यीशु का आगमन हो जाएगा और यीशु का नाम लेना भी बंद कर दिया जाएगा। ओके, तो वहाँ पर फिर आपको दुष्टता भारी पड़ जाएगी, आपको वहाँ पर फिर चीखो चिल्लाओ, लेकिन जल्दी से आपका कोई जवाब नहीं आएगा। ओके, 7 वचन से आगे, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कितना प्यारा परमेश्वर है अन्य जातियों के लिए। ओके, वो कहता है कोई परवाह नहीं माय डियर, तूने क्या क्या पाप किए मैं समझता हूँ। ओके, फिर भी मैं तुझसे प्रेम रखूँगा। अगर तूने मेरे से माफ़ी मांग ली है तो ख़त्म कर दे बात को, पिछला सब भूल जा और नए से तुझे मैं शुरू कर देता हूँ। हालेलुया। वो भविष्य देने वाला परमेश्वर है, भविष्य मिटाने वाला नहीं। ओके, शैतान ने दिए हुए भविष्य वो मिटा देता है और जीवनदायी भविष्य वो हमें उंडेल देता है। 8 वचन से आगे, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अभी तक अपने आप को पहचाने नहीं है। आपको लगता है मसीही जीवन मतलब आप जो जानते हैं वैसा है, नहीं, आपको मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बताता है मसीही जीवन क्या है। हालेलुया। तो आप भूल जाइए, आप मसीहों को देख तो सकते हैं वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन मसीह क्या जीवन जीता है वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही बता सकता है। हालेलुया। वो किसी के आंखों को देखने के लिए नहीं है, ना ही उसको कोई जांच पड़ताल कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो केवल और केवल परमेश्वर के सीक्रेट ट्रेशर्स है, परमेश्वर के गुप्त धन है वो। ओके, वो धन परमेश्वर का है, प्रॉपर्टी है परमेश्वर की, जो लोगों के सामने ओपनली नहीं रखी गई है। सिर्फ वो पवित्र आत्मा अगर चाहे तो उसे खोलकर लोगों को दिखा देता है कि ये कौन इंसान है। ओके, नहीं तो वो बंद एकदम कंटेनर के अंदर प्रेशियसली जैसे बंद रखा जाता है वैसा उसको रखा गया है। प्रेशियसनेस है उसमें, बहुमूल्यता है मसीहों में। ओके, 10 वचन से आगे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है। अब आप बोलेंगे हमने कभी देखा है कि परमेश्वर ने कोई वचन भेजा है? ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, पूरा पवित्र बाइबल जो है इसके अंदर जहाँ जहाँ भी परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो लिख के रखा है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए लिख के रखा है, ये सब कुछ उसने हमको भेज कर दिया हुआ है। किसी को तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से चलाया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने ये बातें लिखी, और ये प्रेरणा से लिखी हुई पुस्तक है जो परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का कहना क्या है वो इस किताब में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है। और पवित्र बाइबल के हर एक वचन परमेश्वर का
प्रेरणा से लिखा गया वचन है। समझ में आया? तो ये परमेश्वर ने भेजा है, ये लिखा हुआ बात हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। उसमें जो लिखा है वो गारंटी दे रहा है कि वह सफल होगा। हालेलुया! वो गारंटी देता है कि उसके अंदर जो लिखा है वो सफल करता है। हालेलुया! तो आप रेमा वचन और लोगोस वचन को इसमें नहीं देखते हैं, ये जो लिखी हुई बात है इसके अंदर ये देख रहे हैं आप कि परमेश्वर का ये लिखा हुआ पुस्तक है, पवित्र बाइबल जिसे कहा जाता है। ओके, पवित्र बाइबल नया पुराना दोनों नियम इकट्ठे करके आपको परमेश्वर ने दिया है उसकी ओर से कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सफल करेगा आपको। आमीन। तो आप और कहीं नहीं जाना है सफलता ढूंढने के लिए। ओके, आपकी सफलता कहाँ है? आपकी सफलता पवित्र बाइबल के वचनों का अभ्यास करने में आपकी सफलता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे चित्त से व्यवस्था कभी अलग नहीं करना। ओके, तेरे ध्यान में उसे बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना ध्यान में, ऐसा लिखा है। इसका क्या था? उसको सफल होने का रास्ता दिया गया था। ठीक है, हमको सफल होने का रास्ता वही है, हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान करते हुए जीना है, हम उसको अपने से अलग होने नहीं देना है। आमीन। 12 वचन से आगे, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटाइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। हालेलुया! यहोवा का नाम किससे होने वाला है? जो शत्रु ने हमारे जीवन में कांटे बोए हैं। ओके, जब हम परमेश्वर के वचन का मनन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, चित्त में ले लेते हैं, हमारी सोचों में, हमारे कॉन्शियस में, जहन में हम उतार लेते हैं, बाद में हम अपने कामकाजों में जुट जाते हैं, उस समय शत्रु जो कर रहा होता है वो उसकी दुष्टता के कड़वे पौधे आने वाला कुछ रास्ता बना रहा होता है। ओके, उस जगह में परमेश्वर कहता है अगर कोई ऐसा रास्ता बनाने के लिए किसी ने कुछ बोया भी होगा तो भी चिंता मत करो, मैं क्या कर दूंगा, सब कुछ तुम्हारे भलाई में बदल दूंगा। हालेलुया! सब कुछ तुम्हारे भलाई में बदल दूंगा। यही कहा है रोमियो के पत्री में भी पौलुस कहता है सब कुछ मिलकर भलाई में ही उत्पन्न होगा। हालेलुया! लाभ में, परमेश्वर के राज्य के लाभ में ही सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आखिरी में जाकर सब कुछ बदल के भलाइयों में उत्पन्न होने वाला है। आमीन। परमेश्वर की प्रजा में सभी जातियां सम्मिलित। 56 अध्याय पहले वचन से यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो उस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है। हालेलुया! और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है अभी उद्धार में आने के बाद। ओके, जब परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया है और प्रूफ कर दिया कि वो हमारा परमेश्वर रहता है और वही रहेगा और इसके बाद और कोई परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाला नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है अभी कि हम शब्बात को डिफाइल ना करें। ओके, अशुद्ध ना करें। हम शब्बात को कैसे अशुद्ध नहीं करेंगे? जब यीशु मसीह के बारे में बोला गया था, है ना, कि उसने एक सूखे हाथ के इंसान को चंगा कर दिया, तो लोगों ने उसको डांटा। ओके, उन्होंने कहा तू यहूदी है, हम यहूदी लोगों की व्यवस्था बनती है यहाँ पर आपको शब्बात, प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने डांट लगाया था। तो उस समय यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम जानते नहीं हो क्या, शब्बात मैं ही हूँ।
ओके, जिसकी आज्ञा पालन करके तुम लोग जिसको शुद्ध रखना चाहते हो वो विश्राम दिन मैं ही हूँ। ओके, वो विश्राम दिन मैं खुद हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को विश्राम दिन कह रहा है, शब्बात कह रहा है। तो अब यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर है। तो अब यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पर कहा गया है हमको अशुद्ध चाल चलन नहीं चलना है, अपवित्र कर देने वाली बातों से हमको बच के रहना है। ओके, और हमारे हाथ के सब भांति के बुराइयों से हमको रोक लेना है, हाथ को रोक लेना है, बुराई नहीं करना है। ओके, हमारे हाथ बुराई करने को नहीं दौड़ाना है। हालेलुया। तो ये सारा काम अभी हमारे उद्धार के बाद के समय हमने जीवन में यूज़ करना है। अब देखिए आगे क्या है, 3 वचन। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे हम तो सूखे वृक्ष है। देखिए, अब आपको यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी धमकी मत दो कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, परमेश्वर का पाप आपने किया, मत कहो, क्योंकि उसने गारंटी दिया है। उसने कहा परदेशी कौन है? हम लोग। ओके, जो अन्य जाति, ठीक है, हम इस्राएली नहीं, हम परदेशी में से है। ठीक है, हमको परमेश्वर कहता है अब तुम लोग ये मत कहो कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। ओके, यानी कुछ कारण से हमको अभी तोड़ देगा, कुछ कारण से हमको छोड़ देगा। तो फिर मुझे एक बात पूछना है, वो वायदा क्या काम है जिसने कहा है कि निश्चित जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूँगा। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है कि मैं शुरू से भी हूँ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब क्या बनता है ना? तो हमने ऐसे धमकियाँ नहीं देना है कि परमेश्वर तुमको छोड़ देगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ऐसे नहीं कहना है। ओके, और ना ही हमारे अगर कोई कमज़ोर अवस्था है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई बैचलर है, कोई स्पिंस्टर है, ओके, कोई प्रकार से किसी के पास संतान नहीं है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, या किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, ओके, वो अनपढ़ ही रह गया, ऐसा कुछ भी अवस्था जो टूटा फूटा अवस्था शरीर का, तो उसने भी नहीं कहना है कि हम तो सूखे वृक्ष है। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूनुक्स लोगों ने भी ये नहीं कहना है कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। ओके, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है। देखा, अब देखो, यहोवा कहीं तो कह रहा है लेकिन कुछ कारण से कह रहा है। जो परमेश्वर के आज्ञा पालन का कंडीशंस में रहेगा उसके लिए कह रहा है। ध्यान रखना ये बात। ओके, वो कह रहा है मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से होता है जब आप परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे हैं, भले ही आप कमज़ोर हैं। ओके, आप कमज़ोर है मत बोलिए, भले ही आप गरीब है, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन आप आज्ञा पालन कर रहे, बहुत बड़ी बात है आपके लिए वो। ओके, अगर आप बदसूरत अपने आप को महसूस करते हैं लेकिन आप आज्ञा पालन कर रहे हैं परमेश्वर का, आप बहुत बड़ी बातें अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं। ओके, अगर आप जॉबलेस है, नौकरी नहीं है और आपको तुच्छ जाना जाता है, अरे ये तो बिना नौकरी के है, बस फोकट के बैठ के खा रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं है, आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ओके, परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं आप, वही बड़ी बात है। आप अपने अंदर के हर एक टूटे हुए रास्ते जो है उसको देख के रोना नहीं है और ये नहीं कहना है हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस हम ऐसे ही है मसीह के अंदर। नहीं, आप आज्ञा पालन कर रहे परमेश्वर के वचन का, तो परमेश्वर का रिवॉर्ड है आपके लिए। ओके, प्रतिफल है आपके लिए। वो कहता है 5 वचन में कि मैं अपने भवन और अपने शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। ओके, अब आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा
इसका लालच नहीं होगा, ज़्यादा ये आपको उकसाएगा नहीं ये वचन, क्योंकि आपको पता नहीं है इस वचन के अंदर का मतलब क्या है। ओके, इसके लिए आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही आपको इसका गहराई बताएगा। जब ये आप समझेंगे 5 वचन क्या कह रहा है आपको एग्जैक्टली, तो आप मसीही जीवन का बहुत आनंद उठाएंगे और आज्ञा पालन में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे आप। ओके, क्योंकि ये शरीर से समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी आपको कदर नहीं होगी, लेकिन जब आप आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा आपको समझाएगा, तब आप मसीह जीवन का असलियत पहचानने लगोगे और आप बहुत धन्य मानोगे अपने आप को कि थैंक यू लॉर्ड जीसस, कम से कम मैंने आज्ञा पालन में तो अपने आप को देख लिया। हालेलुया। 6 वचन से आगे, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं। ध्यान रखो, पौलुस ने भी यही कहा, अगर तुम ये सारे शरीर के लालसाओं के पीछे नहीं चलोगे तब भी तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, नहीं तो तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। खत्म कर दो बात, खत्म करो। आप अगर शरीर के लालसाओं में चल रहे और आप मसीह कहलाते अपने आप को, तो खत्म कर दो बात। परमेश्वर कहता है मैं नहीं दूंगा तुमको वो सब जो मैंने प्रॉमिस किया है। हालेलुया। और यही बात पौलुस ने भी कहा, तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं रह पाओगे ऐसे करोगे तो उन लोगों के लिए है ये जो आज्ञा पालन कर रहे हैं। जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे, खत्म कर दो। चाहे उनके ऊपर बड़ा स्टिकर लगाया रहेगा कि मैं यीशु में हूँ, मैं नया जन्मा हूँ, बहुत बड़ा बोर्ड लगा के अपने आप को घूम रहे होंगे, खत्म कर दो बात, क्योंकि शरीर के लालसाओं में यीशु का कुछ नाम नहीं रहता है। ख़त्म कर दो उस बात को, ख़त्म करो, उनका चर्चा ही बंद कर दो, क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वह सब भूसा है जो आग में डाल दिया जाएगा तो जल जाएगा। वो उसमें कोई ताकत नहीं है आग में खड़े रहने की। ओके, जो सच्चा सोना है वो आग में तप कर निखर कर आता है। ओके, आग में पिघला कर उसको एक अच्छा पवित्र और शुद्ध जीवन प्राप्त होता है। ओके, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो और ज़्यादा शुद्ध बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादा निखर के आता है। तो हम वो सोना है जो परमेश्वर आग में डालता है, और हम ख़त्म होने के लिए नहीं है, हम निखर के और रोशनी से भर के और चमकते हुए और ज़्यादा प्योर होते हुए, शुद्ध होते हुए हम निखर कर आ रहे हैं। आमीन। तो मसीह है तो हमारे गुणों के ऊपर भी हमने ध्यान रखना है, कौन से चाल चलन हम जी रहे हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर कहे चाल चलन का हम मसीह के नहीं कहला सकते हैं। मसीह के चाल चलन हम में होना बिल्कुल जिम्मेदारी का हमारा बनता है। ओके, समय है वो। 8 वचन से आगे, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसको वह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। इस्राएली अगुओं को ताड़ना, आपने देखा होगा ना, पतरस ये लोग क्या कर रहे थे, पतरस ये लोग प्रचार कर रहे थे और इकट्ठे हजार लोग उनके कलसिया में एडिशन हो रहे थे, जोड़ दिए जा रहे थे, परमेश्वर उनको ऐड करते जा रहा था। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ हमको समझना है कि परमेश्वर हमारे संगति में लोग क्यों इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसको इकट्ठे करके कुछ रिवॉर्ड के लिए तैयार कर दिया है। हालेलुया। इस्राएली अगुओं को ताड़ना, 9 वचन से आगे, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वो मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं, आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाए,
कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। हालेलुया। तो हमने उस तरह के लोग नहीं बनना है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, एक रईस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने खेत की जो खेती है पका ली और फिर बाद में अपने इतने बड़े बड़े कोठारे भर दिए। उसने कहा अब खा पी मौज कर, और बड़े बड़े भंडार भर रखे हैं जो पीढ़ियों के आने वाले समयों में भी ख़त्म नहीं होंगे, भरपूरी से भर कर रखा हुआ है। तो फिर क्या हो गया वहाँ पर? परमेश्वर कहता है अगर आज तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब कुछ तेरा क्या काम में आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अब तो तूने प्राण के लिए तो कुछ किया नहीं है, तो अब तेरा प्राण तू जब खो देगा तो प्राण तेरा कहाँ जाएगा? तूने सोचा है क्या? तूने प्राण के लिए तो कोई मेहनत नहीं की, तूने सोचा है क्या वो कहाँ जाएगा? ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर ये वचन कहता है कि हमने अपने प्राण की रखवाली करना है, प्राण को शुद्ध रखना है, प्राण की अवस्थाओं की चिंताओं में हमने परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन जीना है। ओके, हमारे प्राण को हमें जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान बनाकर जीना है, नहीं तो परमेश्वर कहता है ताड़ना है उनके ऊपर। ओके, क्या ताड़ना है? और एक बार पढ़ेंगे 9 वचन से। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाए, कल का दिन भी तो आज ही है, आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। यानी उनको पता नहीं कल उनके प्राण की हालत किस प्रकार के पनिशमेंट के लिए रख दी गई है। हालेलुया। लेकिन हम जो आज्ञा पालन कर रहे हैं, हमारे प्राण की हालत किस प्रकार के लिए रख दी गई है? जो 56 अध्याय के 5 वचन में लिखा है। ओके, लेकिन जो परमेश्वर के विरोध चलने वाले हैं और लोगों को परमेश्वर के विरोध लेकर जा रहे हैं, वो लोगों का अंत क्या रहेगा उनके लिए पता ही नहीं है। हालेलुया। उनको लगता है हम बहुत अच्छे अंत में जाने वाले हैं, उनको पता नहीं है उनके लिए क्या इंतजार लगा रहा है। हालेलुया। वो पृथ्वी के ऊपर आपको खा पीकर मजे मस्ती करते हुए दिखाई देंगे, और उनका भरोसा क्या है? जैसा आज का दिन मजे में गया वैसे ही कल का दिन भी सुहावना रहने वाला है। ओके, वो अपने मर्जी में, अपने मस्ती में, अपनी अगुवाई में, अपने मनमानी रास्ते में अपने लाइफ को जीते हुए जा रहे, और वो लोगों को भी यही सिखा रहे, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, आप चिंता मत करो। ओके, और परमेश्वर के आज्ञा पालन के विरोध में वो लोगों को सिखाते हैं, भरमाते हैं और उस दिशाओं में लेकर जाते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं है। ओके, और उनको पता ही नहीं उनके प्राण के लिए क्या रखा हुआ है ना। वो रईस इंसान को अगर पता होता उसके प्राण के लिए क्या रखा हुआ है तो वो उसके प्राण की रखवाली करता, लेकिन परमेश्वर छुपा के रखा है कि हमारे प्राण के साथ वो क्या करने वाला है अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो। इसके लिए लोग पाप का आनंद उठाते हैं, पानी की तरह पी लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके प्राण के लिए नेक्स्ट मोमेंट क्या रखा गया है अगर वो मर जाए तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपका प्राण बेशकीमती है, उसको पवित्रता, परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलाना जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर कसर नहीं छोड़ना है, और उसी के लिए परमेश्वर के सारे वायदे पूरे होते हैं। नहीं तो कोई वायदा पूरा नहीं होगा और फिर आप लोग बोलेंगे कि हम मसीह में है फिर भी क्यों ऐसे है। ओके, हमारा क्यों बदल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि आज्ञा पालन की कसर हो रही है आपके यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो, अगर कल के दिन आप 10% परेशानी में थे, अगर अगले कुछ दिनों में आज्ञा पालन से आप 8% सिर्फ परेशानी में रहोगे, और कुछ आज्ञा पालन ज़्यादा बढ़ा दोगे, आपका सिर्फ 3 या 4% आपको और परेशानी रहेगी। फिर एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल परेशानी में नहीं रहेंगे। ओके, तो परेशानियाँ
डिसॉल्व होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, रुकती नहीं है अगर आप आज्ञा पालन में रहते हो। ओके लेकिन अगर आप आज्ञा पालन में नहीं रहते हैं तो आज भी वो 10% था, कल को भी वो 20% दिखेगा, परसों तो वो 100% दिखेगा। और आप फिर बोलेंगे मैं तो मसीह में हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ। आया समझ में? तो आज्ञा पालन की आपको कसर है, तभी आपके मुंह से ऐसी बातें आती है कि मेरा परिस्थिति बदल क्यों नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आज्ञा पालन कर रहे हो और आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, तो ये बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि मसीह जीवन सिर्फ मसीह नहीं है, हमारे लिए आज्ञा पालन जिम्मेदारी रखी गई है। थैंक यू पवित्र आत्मा कि आपने हमें ये वचनों का हर भेद बहुत गहराई से समझाया, अच्छे से समझाया, और आगे के समय में हमें तो और भी ज़्यादा परमेश्वर तेरे वचनों के आज्ञा पालन में चौकसी रखते हुए चलने में सहायता कर रहा है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 5 चैप्टर 19 से 27 वर्ष तक, 1 किंग्स 19 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 19 वचन से 27 वचन तक, पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय। हम पढ़ेंगे जब अकेले में बैठकर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी कि क्या है परमेश्वर चाहता है कि हम वचन पढ़ें, क्योंकि वो वचन के अंदर से ही आपको पता चलेगा क्या पालन करना है, क्या पालन नहीं करना है। ओके, जब हम ऐसे चलते हुए जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमको सिखाता हुआ जाएगा और हम 2 साल के अंत में देखेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हम होंगे। और निश्चित है कि परमेश्वर हमको इतना अच्छे रीति से इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि हमारी आज्ञा पालन की क्षमता तेज हो चुकी है। आमीन। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है। निश्चित हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों के अंदर फिट एंड फिक्स करने की तुझसे विनती करते हैं। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर चाहता है उस ईश्वरीय रचना में ढल दो, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आओ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।